آغاز اس خبر کے ساتھ کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ایوان آمد پر ارکان کا شور شرابہ اور نعرے بازی۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے نواز شریف کے خلاف نعرے لگا دیے، جبکہ جواب میں مسلم لیگ نون کے اراکین نے سیٹوں پر کھڑے ہو کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف نعرے لگائے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جانیں گے نمائندہ خصوصی دنیا نیوز لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، کیا سچویشن ہے اس وقت؟ دیکھیں، آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے اپنے آغاز پر ہی ہنگامہ خیزی کا نظر ہو گیا، اور جب مریم نواز ایوان میں آئیں تو وہاں پر نعرے بازی کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ دونوں جانب سے ارکان ڈیسک پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر نعرے لگاتے رہے ایک دوسرے کے خلاف۔ بڑی مشکل سے جو ہے کافی دیر نعرے بازی کا جب مقابلہ ہوا تو اسپیکر نے ہاؤس کو ان آرڈر کیا۔ تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 5 ارکان نے جو ہے آج نئے جو ارکان تھے کل جو حلف نہیں اٹھا سکے، انہوں نے اپنے منصب کا حلف اٹھایا، جن میں حافظ فرت عباس، وسیم بادوزئی، چوئی شافع حسین شامل ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پوائنٹ آف آرڈر پر جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ایم پی رانا آفتاب احمد خان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہاؤس مکمل نہیں ہے، ہمارے کچھ ارکان کو پولیس گرفتار کرنا چاہ رہی ہے، اور آج حافظ فرت عباس جو ہے ضمانت کروا کر یہاں پر آئے ہیں، اس لیے ابھی مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اس لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب نہیں ہو سکتا، جس پر ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ یہ اس حوالے سے آئین بڑا واضح ہے کہ کسی ہاؤس کے جو نامکمل کا کہیں بھی آئین میں تذکرہ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں۔ اگر یہ معاملہ عدالت میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن خود الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہائی کورٹ کے برابر کے اختیارات ہیں، اس لیے آئین میں یہ کہیں نہیں درج کہ ہاؤس مکمل ہوگا تو ابھی تک جو مرحلہ ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا وہ طے نہیں ہو سکا، اور اس سلسلے میں آج ہنگامہ خیزی بھی دیکھی گئی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا، اور اس حوالے میں ہاؤس کے مکمل نہ ہونے کا جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ لیاقت انصاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ جس طریقے سے ہوا اس الیکشن میں یہ بہت افسوسناک ہے، اور اس کا ہم ایک بار پھر مزاحمت کرتے ہیں۔ آج میں شہید عبدالرحمان کے گھر یہاں پہنچا، جو کہ ایک 12 سال کا بچہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سپورٹر یہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تھا۔ اس کے خاندان کو مسلسل یہ دھمکیاں دیا گیا، یہ دھمکی دی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اپنا وابستگی چھوڑے، اور جب انہوں نے یہ دھمکی میں نہیں آئے تو ان پہ فائرنگ ہوا، جس کے نتیجے میں ہمارا شہید عبدالرحمان شہید ہوا۔ اور اس سے جو بہت افسوس کی بات ہے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہے، ان کا بڑا مایوس کن خاص طور پہ الیکشن کے دوران رویہ تھا، اور جس طریقے سے اس بچہ کا شہید ہونے کے بعد ان کے خاندان پہ ایف آئی آر کٹا، یہ پورا سلسلہ کو میں چیف منسٹر ہونے والے چیف منسٹر بننے والا چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمارا ہدایت ہے کہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یا کسی سیاسی جماعت کے کارکن کے خلاف اس الیکشن میں یا الیکشن کے سلسلے میں وائلنس ہوا، یہ فائرنگ ہوا، شہادتیں ہوئے، ان تمام کیسز کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے۔ ہم ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم قائم کریں گے۔ ان جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تمام یہ انسیڈنٹس ہے اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو ان جرم میں ان حملوں میں ملوث تھے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو نہ صرف پکڑیں گے، قانون کی کتاروں میں کڑا کر دیں گے، اور ہمارا امید ہے کہ ہم قانونی طریقے سے انصاف ان کے خاندانوں کو دلوائیں گے۔ وہ تمام وہ سیاسی جماعتیں اور وہ سیاسی قوتوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست، تشدد کی سیاست تعارف کر سکتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس صوبہ میں حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس شہر کراچی میں کے ایم سی میں حکومت ہے، اور ہم
हमारा रेड लाइन, चाहे वो मजहबी दहशत गर्दी हो, चाहे वो लिसानी दहशत गर्दी हो, चाहे वो फ़िरका वाराना दहशत गर्दी हो, हम इस शहर में, इस सूबे में ये तमाम चीज़ें को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आजकल झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये ना समझे कि ये सियासी ड्रामे करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम अपने कारकुन को इंसाफ दिलवाएंगे। मैं मौजूद हूँ, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन वायलेंस शिकार होते हैं, शहादतें कबूल करते हैं, मगर इसका ये नहीं मतलब कि हम अपने कारकुन की खून को, अपने कारकुन को कुर्बानियों को भूल सकते हैं। हम इंश्योर करेंगे कि हम इन तमाम जो भी इन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको ऐसे इबरतनाक हम एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि आने वाले जो भी इलेक्शंस हो उसमें किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस किस्म का तशद्दुद वायलेंस ना हो। ये हमारा हक है। और बस जो मुझसे सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये जो हमारा शहीद अब्दुल रहमान है, इसके बारे में मैंने ख़ुद एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का इस सूबे में सरबराह से खुद फ़ोन करके रब्ता किया कि ये मेरे कारकुन के साथ हुआ है, और इसके बजाय कि मुझे तसल्ली दिया जाए कि हमें इंसाफ दिलवाया जाएगा, इसके बजाय कि हमें कहा जाए कि हमारे कारकुन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम तराशी किया गया। यहाँ तक कहा गया कि इसलिए कोई ये परचम वो MQM का नीचे कर रहे थे, तो इसकी एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सियासत नहीं है कि हम किसी का परचम को हटा दें। हमने आज तक 3 नस्लों से हम ये सियासत करते आ रहे हैं, ये हमारा सियासत रहा भी नहीं। पर एक सेकंड के लिए हम इमेजिन करें कि ये हमारा शहीद अब्दुल्ला रहमान ये काम कर रहा था, तो क्या इसका जवाब में गोली चलाना जायज़ है, कानून के मुताबिक है? क्या ये जो यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने FIR इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ काटे हैं, ये क्यों काटा गया? ये इसलिए कि हम डर जाए, ये इसलिए कि हम पीछे हट जाए, ये इसलिए कि हम अपना शहीद का खून पे सौदा करें? ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से सिंध हुकूमत में और बाकी से ये अपील करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसाफ मांग रही है अपने कारकुनों के जो शहीद हुए इस इलेक्शन में, और हम इस पे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं ना सिर्फ हमारे आने वाले हुकूमत से मगर हमारा अदालतों से कि हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक तो जहाँ तक आपका सवाल है कि 2018 के मुकाबले में इस इलेक्शन में ये जो अभी इलेक्शन गुजरा है, मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। और जहाँ तक एतराज़ है, एहतजाज है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद मैंने पूरा पाकिस्तान के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहाँ हमने कहा कि हमारे एतराज़ात हैं, हमारे शिकायतें हैं और हम इनको परस्यू करेंगे। आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया, इसके 2 मेरे शिकायत, 2 जो ऐसी सीट्स है जिस पे उस्मान हटो, 2 जो ऐसी सीट्स है जिस पे मेरा शिकायत है, मेरा एहतजाज है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है जहाँ कौन से जुनैद कौन सा PS 124 और 125 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्म 45 के मुताबिक हम अक्सरियती जमात है
मगर इन दोनों प्रोविंशियल असेंबली सीट्स को किसी और सियासी जमात के हवाला किया गया है। तो हम ना सिर्फ ये दोनों सीट्स के मगर दूसरे जो इस सूबे में और मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत है, एतराज़ात है, उसको हम लीगल फोरम में सबूत के साथ उसको परस्यू करेंगे। अगर हम उस फोरम से इंशाअल्लाह ताला मेरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर उसके मुताबिक हम आगे का लाएअमल तय करेंगे। मगर जो हैरान कुन बात है, जो अजीब बात है कि वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, जिनका पूरा सियासत धांधली पे मबनी है, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप भी इसी सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं। अब 2002 से लेके आज तक जितने जनरल इलेक्शंस हुए हैं, इनमें से एक सियासी जमात जो एहतजाज कर रहे हैं, क्या वो जीत चुके हैं? 2002 के इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीता। हमें ना वफाक में ना सूबा में हुकूमत बनाने दिया, जबकि दोनों जगह हमारा सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी था। 2008 में हमने इन्हीं सियासी जमातों को शिकस्त दिलवाई। 2013 में हमने इन्हीं सियासी जमातों को शिकस्त दिलवाई, और अब एक बार फिर हमने इन्हीं सियासी जमातों को शिकस्त दिलवाई। और आज तक मैं कह रहा हूँ कि बताइए तो सही कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका कौन सा एतराज़ात है, कहाँ आपने इलेक्शन के दौरान इन एतराज़ात को उठाए थे, ये कौन सा सीट है जिस पे धांधली हुआ है? क्या मेरा लारकानों के सीट पे धांधली हुआ है जहाँ मेरा लाख का लीड है? क्या हरपुर में जहाँ मैंने इस इलेक्शन मुहिम में जो सबसे बड़ा इंतखाबी जलसा किया, क्या वहाँ धांधली हुआ है? अभी अगर आपने इल्ज़ाम लगाना है तो किसी सबूत के साथ इल्ज़ाम लगाया जाता है। कोई ऐसा रिजल्ट हो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लियारी से धांधली के थ्रू हरवाने की बात, तो फिर आप समझते हो। मगर ये मेरा ख्याल में इस बात पे एतराज़ नहीं कर रहे हैं। वो एहतजाज अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मज़ीद धांधली होना चाहिए था और उनको भी इक्का सीट दिलवाना चाहिए था। ये एक मजाक बना हुआ है। पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है, एक पूरा हमारे मुआशरे में जिस तरीके से एक माहौल पैदा हो रहा है, इसका गलत फ़ायदा कुछ सियासी जमातों इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनको हम ये नहीं करने दें। अब मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पूछेगा कौन सा, और एक एक हाथ उठाएंगे, ऐसे चीख के नहीं करेंगे। जी मैडम। जहाँ तक आपका MQM के हवाले से सवाल है, हम तो ज़रूर चाहते हैं कि पार्लियामान में और मुख्तलिफ पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ हम एक मुस्बत किरदार हो। अगर वो अपोजिशन में हैं तो उनका अपोजिशन में भी मुस्बत किरदार हो और उनकी तनकीद की वजह से हमारे पॉलिसीज़ में बेहतरी आए। मगर अगर वो ये समझते हैं कि मैं अपना जो मेरे कारकुन शहीद हुए हैं मैं उनको भूल जाऊंगा, या अगर वो ये समझते हैं कि जहां मेरा सीट पे डाका मारा गया मैं खामोश हो जाऊंगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बजाय जो है, इसके अलावा जो है, हम ज़रूर सियासी जमातों के साथ बातचीत मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक PTI की बात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात है, वो तो मैं समझता हूँ अब
इनको भी अपने कारकुन से सच कहना चाहिए कि इनके पास वो नंबर्स नहीं है कि वो हुकूमत बनाए। और इस वक्त अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहा है तो शहबाज शरीफ साहब ज़रूर हमें भी शुक्रिया कहेगा, मगर पीटीआई को भी शुक्रिया कहेगा, इसलिए कि पीटीआई अक्सरियत नहीं तो ये ज़्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके और अपना उम्मीदवार को मुंतखब करवाए कि वो पीपल्स पार्टी या दूसरा सियासी जमातों से बात करते। इन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला किया है, मेरा ख्याल में खान साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला किया होगा कि शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले वो नहीं करेंगे। और यही वजह है कि जो सियासी जमात हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, हम उनके साथ दे रहे हैं, अक्सरियत फिर हमारा बन जाता है और हुकूमत इंशाअल्लाह ताला इनका हमारा बनने जा रहा है। जो IMF के हवाले से ये काम किया जा रहा है, ये तो एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम के सामने इनका असलियत सामने आ रहा है कि इनका सियासत, इनकी अपनी ज़ाती मसले इस मुल्क के मफाद से ज़्यादा अहमियत रखते हैं इनके लिए। हम तो वो जमात है जो 27 दिसंबर 2007 के बाद भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं, और ये वो जमात है जो पाकिस्तान को मज़ीद मुआशी बहरान में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफ़ा देखना चाहते हैं। इसलिए इनका ख्याल में अगर पाकिस्तान में मुआशी बहरान में इजाफ़ा हुआ तो उनका सियासत को फ़ायदा होगा। इस ख़त का कोई अहमियत नहीं होगा, इस ख़त का कोई अहमियत नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़त के नतीजे में इनके जो असलियत है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नज़र आएगा। अब अज़ान भी का आवाज़ भी आ रहा है और मैंने एक और हमारा जो कारकुन शहीद हुआ है, मैंने वहाँ ताज़ियत के लिए जाना है, तो मैं आप सबसे इजाज़त मांगूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इलेक्शन में उन्होंने अपने कारकुनान के शहादत से मुतालिक भी गुफ्तगू की और कहा कि धांधली से मुतालिक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं।